ہم سب کل آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں گے اور میرے ساتھ مل کر نکالیے. آج ہم سیکھیں گے اخبار کی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی 26ویں سے 32ویں آیت تک. اخبار کی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی 26ویں سے 32ویں آیت تک. آئے آج ہم خدا کے زندہ کلام مقدس کے مطابق جانیں کہ خدا ہم سے کیا کلام فرمانا چاہتا ہے، خدا ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، خدا کے احکام و قوانین کیا ہیں. آئے ہم خدا کے زندہ کلام سے سیکھیں. اخبار کی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی 26ویں سے 32ویں آیت تک. ہم دیکھیں گے اخبار کی کتاب، اس کا 23واں باب، اس کی 26ویں سے 32ویں آیت تک. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن ہے. اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا. تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارے کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا. جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے پناہ کر دوں گا. تم کسی طرح کا کام مت کرنا. تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا. یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو. اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا. تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت منانا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص کرتی. اللہ کا شکر ہے. جی سب تشریف رکھیے گا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سیکوینس کیا تھا، ہم کیا سیکھ رہے تھے اور کس ٹاپک کے مطابق ہم ہر سنڈے سیکھتے تھے. ہم پاک روح القدس کے بارے میں جان رہے تھے اور ہم نے کم از کم 37 اتواروں تک ان تمام روح القدس کے کلام کو سیکھا اور سمجھا. اب وقتان پہنچے کہ ہم ان روزوں کے ایام میں کچھ روزوں کے مطابق سیکھیں، روزوں کے متعلق کچھ جانیں، کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں. اور ہم ریزریکشن ڈے یعنی شاپ ایسٹر کہتے ہیں، ریزریکشن ڈے یعنی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی جو عید ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ پھر کیری آن رکھیں گے. ہم رویا کے مطابق جانیں گے. ان عید کے بعد اس عید تک ہمارے پاس 4 اتوار ہیں اور ہم ان اتواروں میں روزہ کے متعلق سیکھیں گے، بہت ساری نئی باتوں کو، بہت سارے نئے قوانین و آئین کو سیکھیں گے کہ خدا اب لوگوں کو کیا بتانا چاہتا ہے. کیونکہ میں چاہتا تھا کہ خدا ہمیں یہ بھی بتائے کہ ہم اس کو سیکھیں، تو ہم روزہ کے متعلق آج سیکھیں گے. ہم اپنے اس پاک روح کے جو سیشن ہمارے چل رہے تھے اس عید کے بعد ہم اس کو دوبارہ کیری آن کریں گے تاکہ ہمارے سیکھنے کا پروسیس چلتا رہے. اخبار کی کتاب سے قوانین کی کتاب کہا جاتا ہے. آج اس میں آپ کے اوپر جو آپ نے 26ویں آیت پڑھی 23ویں باب کی، اس کے اوپر ایک ہیڈنگ ہے یوم کفارہ. کیا جی ہیڈنگ؟ یوم کفارہ. ہم روزہ کے مطابق سیکھیں گے متعلق اس کے حوالے سے. روزہ کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا. کیا کرنا جی؟ اپنی جان کو دکھ دینا. ہلو، کیا دینا؟ اپنی جان کو دکھ دینا. یہ عبرانی لفظ سوم سے نکلا ہے جس کا مطلب تھا دکھ اور تکلیف. عبرانی لفظ سوم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے دکھ اور تکلیف. اور دکھ اور تکلیف اپنی جان کو دینا، اس کا مطلب ہے روزہ کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا. اور اسی لیے بتاتا چلوں بائبل مقدس میں کہیں بھی 40 روزوں کا کتنا روزہ ہے؟ ایک ہی روزہ. ایک روزہ فرض ہے. یہ جان لیجیے. آج ہم بچپن سے کچھ اور سیکھتے آئے تھے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا. آج وہ دور آ گیا کہ آج ہم سیکھیں اور سمجھیں. بائبل مقدس میں خدا نے ایک ہی روزہ فرض کیا تھا اور وہ روزہ تھا کون سی طریقہ بلا جانتے ہیں؟ کون سی طریقہ روزہ بولا؟ 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا. بہت سے لوگ روزہ کے وقت کو نہیں جانتے کہ جی روزہ کا وقت کیا؟ ایک شام سے دوسری شام. ویری گڈ، شاباش. ایک شام سے دوسری شام. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ خدا نے روزے کا ٹائم ایک شام سے دوسری شام کیوں ٹھہرایا؟ بہت ساری باتیں جنم لیں گی سوال ہمارے ذہنوں میں. تو جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں وہ ان باتوں کو سیکھیں اور سمجھیں تاکہ ہمارا فائدہ ہو سکے. جی، ایک شام سے دوسری شام کیوں تھا جانتے ہو؟ کیونکہ پیدائش میں
एक दिन जब एक शाम से दूसरी शाम तक। वेरी गुड, शाबाश स्टूडेंट्स। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक दिन एक शाम से दूसरी शाम तक का था। ये जान लीजिए, पहले बाब के अंदर खुदावंद ने जब 6 दिन बनाए, 7 दिन आराम किया, उसे एक हफ्ता कहा गया, 7 दिन कहे गए, तो ये दिन का वक्त एक शाम से दूसरी शाम तक था। इसलिए जब रोजा भी रखा गया या रोजे का तायन खुदा ने फर्ज किया, तो वो भी एक शाम से दूसरी शाम तक। इसराइली आज भी जब सबत मनाते हैं तो उनका जो सबत पाक दिन है वो हफ्ता है, सैटरडे का दिन, और वो लोग जुमे की शाम से हफ्ता की शाम तक कुछ अपने घरों में नहीं बनाते, उनके घरों में चूल्हा नहीं जलता। वो इस दिन के खाने की तैयारी जुमे की शाम से पहले कर लेते हैं। इसलिए जब यीशु मसीह मसलूब हुए थे तो उन्होंने कहा था जल्दी करो क्योंकि सबत शुरू होने वाला है, सलीब से उतारो इन्हें ताकि सबत शुरू हो सके। और यह था एक शाम से दूसरी शाम तक। और 26 आयत में लिखा गया था इसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। कफारा कहते हैं कुर्बानी। क्या कहते हैं जी? कुर्बानी। कफारा कहते हैं कुर्बानी को। कफारा पेश किया, कुर्बानी पेश की। और कुर्बानी कौन सी पेश हो रही है बोला? हेलो, इन आयात के मुताबिक जो आज आपने सुनी है, कौन सी कुर्बानी पेश हो रही है? किसकी? और अपनी जानों को दुख देना। अपनी जान की कुर्बानी शुरू हो रही है। इसमें और कुर्बानियां भी आएंगी जिसका जिक्र मैं डिटेल से करूंगा आप लोगों के पास। लेकिन मेन कफारा था इंसान का अपना जिस्म। इस जिस्म को के लिए एक कुर्बानी पेश की, कफारा पेश किया गया। और क्या उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। क्या हो जी? मुकद्दस मजमा, मुकद्दस महफिल जमे। और लिखा था तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदा की आतिशीन कुर्बानी गुजराना। अब हम जानेंगे आतिशीन कुर्बानी क्या होती है। पहली बात वो कह रहा है अपनी जान को दुख दे, मुकद्दस मजमा। अगर 40 रोजे होते तो फिर तो हर डे मुकद्दस मजमा होना चाहिए था, हर डे, और पूरे दिन अपनी जान को दुख देना। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 7वें महीने की 10वीं तारीख, याद रखिएगा इसराइलियों का वक्त डिफरेंट है, हमारे डिफरेंट है। वो चांद के मुताबिक चलते हैं, हम सूरज के मुताबिक चलते हैं। उनका 7वां महीना और है। पिछले साल 9वें महीने की 25वीं तारीख उनका 7वें महीने की 10 तारीख बनती थी। आज भी उनका 7वां महीना डिफरेंट है। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको ये दिन मिल सकता है। वो लोग उस दिन रोजा रखते हैं और कोई काम नहीं करते, सारा दिन मुकद्दस महफिल जमती है। वो लोग कलाम सुनते हैं, गीत गाते हैं, खुदा की प्रस्तुति करते हैं और सारा दिन इसी में रहते हैं। लेकिन उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, आप कोई काम नहीं कर सकते उससे। इसराइलियों के अंदर ये कानून था। अब आए जाने लेकिन अपनी जान को दुख दे, पहले और मुकद्दस मजमा, फिर अपनी जान को दुख दे, और तीसरी चीज बता रहा है खुदा के हुजूर आतिशीन कुर्बानी गुजराना। अब हम जानेंगे कि आतिशीन कुर्बानी क्या होती है। इस बात के ऊपर गौर कीजिए। आबाद की किताब उसके पहले बाब में इसका जिक्र मिलता है, जहां पर कुर्बानियां शुरू होती हैं। वहां पर पहली कुर्बानी का नाम था सोख्तनी कुर्बानी, खुदा की खुशी के लिए, खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ाना, खुदा की खुशी के लिए। बड़ी दफा लोग कुर्बानी चढ़ाते हैं अपने गुनाह के लिए, खता के लिए। बेशुमार कुर्बानियों का जिक्र यहाँ पर मिलेगा इन 6 से 7 अबवाब में। लेकिन पहली जिस कुर्बानी का जिक्र किया गया था वो थी खुदा की खुशी के लिए। और यहां लिखा गया था कि 4वीं आयत में, और वो सोख्तनी कुर्बानी के ऊपर जो इंसान उसे लेकर आए, कुर्बानी के जानवर के सर पर अपना हाथ रखे, तब वो उसकी तरफ से मकबूल होगा, ताकि उसके लिए कफारा हो। और उस बछड़े को खुदा के हुजूर ज़िबा करे और हारून के बेटे जो काइन हैं खून लाकर उसे उस मज़बा पर गिरदागिर्द छिड़के जो खैमा इत्तेमाद के दरवाजा पर है। तब वो सोख्तनी कुर्बानी के जानवर की खाल खींचे और उसके अजू को काट कर जुदा जुदा करे। और लिखा है फिर हारून काइन के बेटे मज़बा पर आग रखें और आग पर लकड़ियां तरतीब से चुन दे, और हारून के बेटे जो काइन है उसके अज़ा को, सर और चर्बी को उन लकड़ियों पर जो मज़बा की आग पर होगी तरतीब से रख दें।
لیکن اس کی انتڑیوں اس کے پایوں کو پانی سے دھو لے، تب قائم سب کو مذبح پر جلائے کہ وہ سوکھنے قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو۔ آتشین کہتے ہیں آگ کی قربانی، یعنی جانور کے سب اعضاء لے کر سب کے سب اس کو آگ میں جلا دیا جائے، اس کو کہتے ہیں آتشین قربانی، یعنی کھانی نہیں، انسان اس کو کھائے گا نہیں، بلکہ اس کو سارا کا سارا آگ میں جلا دیا جائے گا۔ یہ سوکن قربانی یسوع مسیح کی بھی ہے۔ یاد رکھیے جتنی قربانیاں سب یسوع سے جڑی ہیں۔ یسوع نے اپنے پورا کا پورا بدن خداوند کو دے دیا، خدا باپ کو دے دیا۔ اس نے پورا کا پورا بدن خدا کو دیا تاکہ خدا کے حضور سوختنی قربانی چڑھائی جائے۔ اسے کہتے ہیں راحت انگیز یا آگ کی قربانی، یعنی جانوروں کو ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے کے بعد سب کچھ آگ میں جلا دیا جائے، اس کو آتشین قربانی کہتے ہیں۔ لیکن تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے۔ کیا کرنا؟ کسی طرح کا کام نہ کرنا، جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ ایک بات میں ذہن سے بتلا دوں، جو غیر قوم کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، بات یاد رکھیے گا، یہ بات تمہارے مسیحوں سے وہ لوگ پوچھتے ہیں، اپنی جان کو دکھ دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے بھلا؟ طویل چیز نہ کھاؤ، لیکوڈ پی لو، نہیں، کچھ بھی نہ کھانا، کچھ بھی نہ کھانا۔ یونا کی کتاب اس کے 3 باب کی 5 آیت میں لکھا تھا، 7ویں آیت لے کر، کہ نہ کوئی انسان یا جانور نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے۔ ہمارے دوسرے ملک انڈیا کے اندر یہ رواج ہے۔ میں نے بہت سارے انڈیا لوگوں کو دیکھا جو روزہ کے دن یا جب روزہ رکھتے تھے تو طویل چیزیں کھاتے لیکن لیکوڈ پی رہے تھے، اور انہوں نے مجھے بھی کہا بھائی صاحب نے، میں نے ان سے کہا سر روزہ کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا، نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا۔ ہم نے ساتھ والی قوم کو بتانا ہے۔ انڈیا کے لوگ جو لیڈیز اپنے خاوند کے لیے روزہ رکھتے تھے تو ان کے خاص لفظ سے کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور وہ یہ کام کرتی تھی، طویل چیز نہیں کھا سکتی لیکن لیکوڈ پی سکتی تھی۔ اس کا رواج ہمارے ان مسیحوں کے اندر بھی آیا، لیکن ہم نے قوموں کو بتانا ہے کہ نہیں جی، جس روزہ کا ذکر خدا کرتا ہے وہ ہے اپنی جان کو دکھ دینا، اور لکھا تھا جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ ایک کام بڑا چنگا ہے، سونا کام۔ کوئی ہو سکتا میں پاس صاحب کی گل نہیں مانتا، پاس صاحب کہتے رہے میں اپنی مرضی کروں گا، خدا نے کہا چل تسی اپنی مرضی کرو اور میں بھی تجھے کاٹ ڈالوں گا، لوگوں میں سے فنا کر ڈالوں گا۔ اور پرانے عہدنامہ کے اندر خدا باپ نے، خداوند خدا نے بہت سے لوگوں کو ایسا کیا۔ میں اتنے جا کے یسوع نو کہنا ہے، یسوع جیڑا سنڈے والے دن ستا ہوئے پوری منجی سمیت جلا کے رات کر دینا، ایک مرے گا باقیاں نو عقل آئیے گی۔ ہاں اتنے جا کہوں گا اے اج کل دے مسیح سلو ہو گئے نے، خداوند خدا او پچھلا قانون چنگا سی، قانون تھا کہ اپنی جان کو دکھ دے اور جو نہ دے وہ کاٹ ڈالا جائے گا۔ اب لوگ ڈر کے مارے یہ کام کرتے تھے، ساڑھے جی ڈر مک گیا، ایسا ہو گیا کوئی نہیں خدا نہ بعد جو مل لیں گے، اتوارا دن سو کے گزارا کریے، 6 دن اتنا کام بھی تو کیتا ہے۔ یاد رکھے گا یہ دن آپ کا نہیں ہے، یہ دن خدا کا ہے، 6 دن آپ کے ہیں۔ جب 7ویں دن خداوند نے آرام کیا تو وہاں کہا تھا یہ مقدس اور پاک دن ہے اور یہ دن میرا ہے، اس دن تمہارا مقدس مجمع ہو تاکہ تم خدا کے آگے حاضر ہو۔ یہ ہمارا خدا کے قریب آنے کا دن ہے، خدا کے پاس آنے کا۔ آپ جب خدا کے پاس آئیں گے وہ اس دن آپ کو پاک اور مقدس کرے گا اور آپ کو خدا کے جلال کے لیے پھر سے تیار کرے گا۔ اور یہ دن ہمیں سکھاتا اور سمجھاتا ہے، ہم جب کلام سیکھتے ہیں، ہم جب پرستش کرتے ہیں تب ہم اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ یہ دن خدا کا ہے اور ہم نے اس میں خدا کی بندگی کرنی۔ کیا کرنا ہے جی؟ تو ساڈے لیے 2 گھنٹے بھی اوکھے ہوندے نے۔ 500 میں ایڈا لمبا چرچ، میں شکر کرو تسی اسرائیلیاں دے گھر پیدا نہیں ہوئے۔ سبت والے دن کوئی کام نہیں کرنا، صرف پورا دن آپ نے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ میں شکر کرو انہوں نے گھر پیدا نہیں ہوئے، ورنہ تسی تنگ پہنے تو اگلا کہنا جا بھاجی پھر۔ ہاں، اور خدا نے کاٹ ڈالنا تھا۔ یہ قانون بہت اچھا ہے، ہمارے مسیح سست پڑ گئے ان کاموں سے۔
खुदा के दिन की अहमियत को जानिए। मैं किस दिन सबत के ऊपर फिर से लेक्चर दूंगा ताकि आप लोग जान सकें कि सबत की पाक दिन की क्या अहमियत है। लिखा है जो शख्स उस दिन किस तरह का काम करे लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का भी काम मत करना, यानी किसी तरह का भी नहीं, कोई काम कर दूंगा, किसी तरह का काम ही मत करना। तुम्हारी सब सुकूनत गांव में पुश्त दर पुश्त सदा यही आन रहेगा। कब तक? नस्ल दर नस्ल सदा, जब तक ये दुनिया कायम है तुम लोग ये रोजा रखोगे और सदा इस आइन को मानोगे। असी दुनिया ते आजकल अपनी आइन बना लेते हैं, दुआ भी अपनी मर्जी दी, कलाम भी अपनी मर्जी दा, जिंदगी च ख्वाहिशां भी अपनी मर्जी दियां, ते रब भी अपनी मर्जी दा, सब कुछ अपनी मर्जी का। और पैदाइश किताब में लिखा था जब नूह के वक्तों में खुदा ने दुनिया को तबाह किया था तो वहां लिखा था कि लोगों ने अपने तरीकाकार बिगाड़ लिया था। और मैं एक दिन कलाम दे रहा था, आज साडा भी वही हाल है, तरीकाकार बिगाड़ लिया। सानू साडी मर्जी के मुताबिक मजहब चाहिए। और मैं बताता चलूं कि ये नुकसान की बात है। उसने कहा किसी तरह का काम ना करना और नस्ल दर नस्ल ये आइन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत हो, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम इस महीने की 9वीं तारीख की शाम से 10वीं शाम तक अपना सबत मानना। 9वीं तारीख की शाम से 10वीं तारीख की शाम तक इस रोजा को मानना। अब आए जानते नए नामे के अंदर कि यीशु ने इस बारे में क्या हुक्म जारी किया कि तुम्हें कैसा रोजा रखना चाहिए। थोड़ा सा इस बारे में भी जानेंगे। मत्ती की इंजील 6 बाब की 16वीं से 18वीं आयत तक। क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन बल्कि जब रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। लेकिन जब रोजा रखे। अब मैं बताता हूं नया नामे के कानून चेंज किस तरह हो गए। रोजा का जिक्र पुराने नामे में आया और यूना की किताब में लिखा, मैं आगे तक बताता हूं, लिखा जब तू रोजा रखे तो रियाकार की मानना बंद। रियाकार का मतलब है मुनाफिक, फरेबी, झूठा, दो दिल आदमी। अक्सर कहना मैं कोई काम नहीं करना, मैं रोजा रखा है। अक्सर अम्मी मैं कोई काम नहीं कर सकती, मैं रोजा रखे, मैं तंग ना करें। भैनों भी कह देना मैं रोजा रखे आज। कलाम मुकद्दस फरमाता है अपनी सूरत उदास ना बनाओ। क्या ना बनाओ जी? अपनी सूरत उदास ना बनाओ। और क्योंकि वो अपने मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। उदास क्यों बन रहे हैं? ताकि लोग उनको रोजादार जाने। और मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु कह रहा है मैं तुमसे सच कहता हूं अपना अजर पा चुके। बहुत सारी नेकियों का अजर हम जमीन में ही पा लेते हैं जब हम अपनी नेकी बार बार लोगों को बताते हैं। मैं भी काम किया जो खुदावत से, मैं भी करन रही है, मैं भी काम करन रहा। आपकी नेकी जाया, आपका अजर आपको मिल जाता है। अगर आपने रोजा भी रखा है और दूसरों को बता दिया है तो आपके रोजे का अजर आप पा गए और वो रोजे का अजर खत्म हो गया। कलाम मुकद्दस में लिखा है 19 आयत में अपने वास्ते वाल खजाना जमा कर जाना चोर चोरी कर सकता और ना जंग ना कीड़ा लग सकता है। कहता अपनी तमाम नेकियां आसमान पर जमा कर, जब तू आसमान पर जाए तो तुम मालदार आदमी कहलाए। ऐसी कोई एक काम करने तो 100 लोगों को दसना होंगे मैं ए काम किया जे, और ऐसा करने से आपकी सारी नेकी जाया हो जाती है और मैं आपकी नेकियों में चला जाता हूं ताकि आसमान पर जाकर आप मालदार हो। मालदार तब होंगे जब आप उस नेकी को छिपा लेंगे। मेरी शादमन में भी यही आदत थी, मैं लोगों से कहता था कि मत ऐलान करवाइए चर्च में, आपका ऐलान आपकी सारी बरकतें खो देगा। लेकिन जब तू खैरात करे तो नरसिंगा ना बजवा, ढोल ना बजवा। मैं भी कीता जी, मत सबको बता, इवन जो तू करे किसी और को पता ही ना हो कि तू ये नेकी कर रहा है, तूने ये काम किया, किसी को पता ना लगे, नरसिंगा मत बजवा। लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना अजर पा चुके। आप जब रोजा रखें तो लिखा सूरत उदास ना बना रियाकारों की तरह। सूरत उदास बनाते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। लिखा जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल। क्या कर? तेल डाल। क्यों पड़ा? तेल क्यों पाना सिर से?
जी मैं जानता हूँ, जो देख रहे हैं वो भी गौर कर सकते हैं इस बात के ऊपर। नैनवा के लोगों ने जब रोजा रखा तो कलाम मुकद्दस में लिखा है 5वीं आयत में, नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदनों वाला सब ने टाट तोड़ा। बादशाह ने भी अपना शाही लिबास उतार डाला और टाट तोड़ कर राख पर बैठ गया ताकि हुजूर खुदा के हुजूर गिरिया जारी की जा सके, खुदा के हुजूर आजिज़ी की जा सके। यह पुराने नामे का रोजा था। रोजा अफसुर्दगी की अलामत थी और रोजा मातम का निशान भी था, और ये भी था कि खुदा इस रोजा के वसीला से मुझे मुआफ कर देगा। लिखा है टाट तोड़ा और राख पर बैठ गए। वो राख हो सकता है बालों में भी पड़ी हो, बाल बिखर चुके हो। सब शहर के अंदर, मुल्क के अंदर ये बात तय हो चुकी थी कि सब मिलकर रोजा रखें, और अगर उस दिन किसी ने रोजा ना रखा होता वो जरा सेट नजर आता, देखने में जरा ठीक नजर आता, तो लोग कह सकते थे तूने बादशाह की बात क्यों नहीं सुनी, क्या तुझे रोजा नहीं रखना चाहिए था। और टाट तोड़ने से, रात पर बैठने से, रात जब सर पर पड़ी तो बाल बिखर गए होंगे, बाल बिखर गए होंगे, और वो मट्टी उस मुंह पर और जिस्म पर भी नजर आती होगी। अगर रात पर बैठ गए हैं और टाट तोड़ा है जो रात से भरा है, तो इसका मतलब यह है कि मट्टी से भर जाना। आप रात से भर गए, आप परेशानी के आलम को जाहिर कर रहे हैं कि खुदा हम पर रहम करे। तो लिखा है जब रोजा रखे तो सर में तेल डाल और मुंह धो। मजे की बात है, यीशु नए नामे में कह रहे हैं अब मैंने कानून बदल दिया, अब लोगों को दिखाने के लिए रोजा नहीं रखना, अब वो रोजा रखना है जिससे पोशीदगी में सिर्फ तेरा बाप देखे कि तू कैसा रोजा रख रहा है। पहले रोजा में क्या कर रहे हैं, बादशाह कह रहे हैं सारे रोजा रखे, टाट तोड़े और खाक पर बैठ जाए। अब हर एक को पता था, हर एक ने रोजा रखा है। नया नामे में उसने कह दिया अब तू सर में तेल डाल, किसी पता नहीं लगे तू रोजा रखे है। देखिए कानून चेंज हुआ। पुराने नामे के अंदर टाट तोड़ कर सर में खाक डालकर बैठ गए और रात पर बैठ गए, ये रोजा था नैनवा के लोगों का। नया नामे के अंदर यीशु से कह रहे हैं अब तू सर में तेल डाल और ना टाट पर बैठना है ना रात पर बैठना है। हुन काम चेंज हो गया, नए अहदनामा में पैटर्न चेंज हो गया, काम चेंज किया यीशु से ने। उसने कहा जब तू नया अहदनामा में अब तू रोजा रखे, सर में तेल डाल, मुंह धो, ताकि तू खुशनुमा नजर आए। खुदा को ज़ाहरी नहीं बल्कि बातनी चीजें चाहिए। अब क्या चाहिए, अब जिस्म वाले काम नहीं चाहिए, कहते रूह वाले काम चाहिए। अब खुदावंद को आपकी रूह से गर्ज है। वो कह रहे तूने जिस्म वाले काम कर लिए अच्छे हैं, अब जरा रूह से काम कर। अब मुझे सब कुछ तेरे अंदर से नजर आना चाहिए, पोशीदगी में। अगर अंदर ठीक हो जाएगा तो बाहर खुद ब खुद ठीक नजर आएगा। ये बात याद रखिए, अगर हम अंदर से बदल गए तो बाहर से बदले नजर आएंगे। कि अंदर ना बदलिया तो सिर्फ बाहरों बदलिया तो फिर धोखाधड़ी होगी, फिर रियाकारों जैसे काम होंगे। खुदावंद आज हमें नई चीज सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं अब जब तू रोजा रखे तो पुराने नामे की तरह नहीं रखना। अब ना रात पर लगानी है, रात पर बैठना है, ना टाट तोड़ना है, बल्कि अब तूने वो रोजा रखना है जो नजर ही ना आता हो। अब एक डिफरेंट चीज मुझे चाहिए, और डिफरेंट चीज ये है कि तू अंदर से मैं तुझे देख सकूं। लिखा है ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। कहने का वो रोजा नहीं चाहिए जो लोग देखें, अब वो रोजा चाहिए जो तेरा बाप देखे, जो आसमान पर है, पोशीदगी में, ताकि अब लोग ना जाने खुदा जाने। अब कौन जाने, खुदा। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कितनों को अजर चाहिए बोला, बरकत किसे चाहिए, किससे चाहिए हमें। और हम इंसानों से चाहते हैं, हम अपना अजर इंसानों से चाहते हैं। लोग मेरी वाह वाह करें, मैं काम किया। मत करिए, आप अपना अजर खो देंगे। रोजा रखें, मत किसी को बताएं, मत सूरत उदास बनाएं, बल्कि उस दिन ज्यादा काम करें, ज्यादा एनर्जेटिक बन जाए। खुदा मेरे जिस्म को ताकत और कुव्वत दे, आज मैं ज्यादा काम करूं, किसी को मुझ पर शक ही ना हो कि मैंने रोजा रखा हो।
आज मैं किसी को बताऊंगी नहीं, ना बताऊंगा। आज मैं सिर्फ अपने बाप को, मेरे बाप को पता है मैंने रोजा रखा हुआ। नया अहद, नया तरीकाकार। खुदावंद कह रहा था अब अपना तरीकाकार बदल ले, अब मुझे ऐसा रोजा चाहिए जो सिर्फ मैं और तू जाने। जब तू अब जब कोई अंदर से रोजा रखे तो कैसा नजर आएगा? हेलो, और जिस ठीक है, और फ्रेश और नरम दिल माफ करने वाला, और रोजा आपकी बहुत सारी बुराइयों को भी रोकता है। आपको आपने रोजा रखा होता ना, आप कहते नहीं अब मैं पेड़ा काम नहीं करना, मैं रोजा रखा है। तो कई ऐसे इंसान जा रहे होने अपने अंदर से नहीं कह रहे होते, लोगों ने कह रहे आज मैंने छेड़ी ना तंग ना करी, आज मैं रोजा रखा, आज मैं गाला नहीं कर सकता, आज मैं रोजा रखा, आज मैं झगड़ा भी नहीं कर सकता, आज मैं रोजा रखा। अब भाई तुमने रोजा रखा है तो क्यों लोगों को बताकर अपना अजर खत्म कर रहे? जब आप अंदर से रोजा रखेंगे तो आप बाहर से कलाम मुकद्दस के मुताबिक नजर आएंगे। जैसा कलाम चाहता है आप वैसे नजर आएंगे। खुदावंद ने नए ऐदनामे में, नए कानून में हमें नई चीजें बताई। उसने कहा पहले लोग देखते थे, अब खुदा देखना चाहता है। अब अपने आप को इस लायक बना ताकि तू ऐसा रोजादार जाने। तो हम जब उसमें पढ़ रहे थे अबार की किताब में, अब आप किसी को कहे ना कि 40 रोजे ने, तो उसे कहना मुझे दिखाई कहां लिखा गया कि 40 रोजे रखने चाहिए दिन। मजे की बात है, आपको जब परेशानी हो, जब मुसीबत हो, जब दुख हो, जब आप सोच रहे हो कि मैं कुव्वत में कमजोर पड़ गया हूं, मुझे कुछ चाहिए और नहीं मिल पा रहा, रोजा रखें। आप साल में जब मर्जी रोजा रख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, जब मर्जी। जब आप समझे मेरे खुदा से दूरी हो रही है, मैं फील कर रहा हूं, रोजा रख ले। और पता किसी को ना हो मैं दुख में मुब्तला हूं, खुदा उस दुख को खुशी में बदलेगा, आप रोजा रख लीजिए। एक शाम से दूसरी शाम। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक का भी रोजा रखा है, और वो रोजे भी हमें नजर आते हैं, उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक का भी रखा। लेकिन याद रखिएगा अगर हम खुदा के कानून के मुताबिक चले तो ज्यादा बेहतरी होगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि वो रोजा रखें जो खुदा चाहता है। पहला शमूएल उसके 7वें बाब की 6ठी आयत में जब लोगों पर, जब बिन्यामीन का, जब इस्राएली लड़ाई के लिए थे तो मुसफ्फा में फराहम हुए, और उस दिन उन्होंने रोजा रखा, और ये शाम तक का रोजा था। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतरीन है कि हम वो रोजा रखें जो खुदा का कलाम हमें बता रहा है, एक शाम से दूसरी शाम, ताकि हम ज्यादा बरकत पा सकें। कहते अगर हम अपनी मर्जी को काम करते हैं तो हमें बरकत उतनी मिलती है, लेकिन अगर हम खुदा के कानून के मुताबिक रोजा रखेंगे तो उससे हम ज्यादा बरकत पाएंगे। और खुदा का कलाम ये कह रहा है मैं चाहता हूं कि तू वैसा रोजा रख जैसा मैं चाहता हूं, ज़ाहरी नहीं बल्कि बातनी, अंदर से रूह का रोजा हो, ताकि तू रूह में बदले और रूह में चले मेरे साथ। खुदा कैसे मेरे साथ ढूंढ रहा है? रूह और सच्चाई से। कहना रूह वाला काम चाहिए ना हो। यीशु ने नया नाम में रूह के कवानीन को उभारा। खुदा यीशु अल मसीह ने हमें रूह के मुताबिक चलना और बढ़ना सिखाया। बहुत सारे लोग रूह की बातों को नहीं समझते, निकोदेमुस भी नहीं समझ पाया था। खुदा कहता है मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जब रूह के मुताबिक चल रहे हैं। किसके मुताबिक? रूह के मुताबिक। रोजा भी रखें तो रूह के मुताबिक, ताकि आपको ज्यादा बरकत मिले और आप ज्यादा खुशनुमा नजर आए, ताकि बाप जो पोशीदगी में देखता है आपको उसका बदला देगा। आज हम ये अहद करेंगे, आइंदा के बाद मैं रोजा अपना किसी को नहीं बताऊंगा। बड़ी मुश्किल पै जाए कि हुन वस नहीं चलन रहा, बगैर दस से गुजारा नहीं हो रहा, उस वक्त बता सकते हैं। लेकिन हत्युल मकान कोशिश कीजिए कि ना बताओ, ना पता लगे, ताकि आपको खुदा उसका बदला दे सके। हालेलुया। आज के बाद कैसा रोजा रखेंगे जैसा खुदा चाहता है जी। सूरत उदास नहीं बनानी, खुशनुमा नजर आना है। कफारे के दिन में लोग काम कैसे कर रहे थे, लिखा था उस दिन तुम अपनी जान को दुख देना, मुकद्दस मजमा हो, आतशीन कुर्बानी भी गुजराना, वरना मैं तुझे लोगों में से काट डालूंगा और ये नस्ल दर नस्ल ये आइन रहे। इसराइली आज भी 7वें महीने के 10 तारीख का रोजा लाजमी रखते हैं। इसके अलावा ये कुछ रोजे और भी रखते हैं इसराइली, जो ये समझते हैं कि हम पर फर्ज है।
लेकिन खुदा की तरफ से नहीं, बल्कि ये उन्होंने अपने ऊपर फर्ज कर रखे थे। जिक्रिया की किताब 8वें बाब की 19वीं आयत में यहूदी 4 किस्म के और भी रोजे रखते थे, जो चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने में रखे जाते थे। और ये रोजे थे खुशी के लिए, खुरमी के लिए, खुदा की शादमानी के लिए। और लिखा था तुम सच्चाई और सलामती को जीत रखो। जिक्रिया की किताब 8वें बाब की 19वीं आयत में यहूदी चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने का भी रोजा रखा करते थे, लेकिन फर्ज एक ही था। बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई पूरी बाइबल में 40 रोजों का जिक्र नहीं, बात याद रखिएगा। अगले संडे में बताऊंगा, हम जानेंगे 2 और नबियों के बारे में भी, यीशु के बारे में भी, और मुख्तलिफ चीजों के बारे में सीखेंगे कि रोजा क्या क्या काम कर सकता था, और रोजे में लोग कौन कौन से छुटकारा चाहते थे, रोजा किस किस चीज की अलामत था, वो हम सब सीखेंगे नेक्स्ट संडे के अंदर। तो जरूर है कि हम इन सारी बातों को जाने। और आज के बाद कौन सा रोजा रखेंगे बता? हाँ, सूरज भी दास नहीं बनानी। अम्मी मैं आज काम नहीं करना, मैं रोजा रखे आज, ऐ नहीं कहना आज मैं काम पे नहीं जाना अबू, मैं रोजा रखे लो, किसी को पता ना लगे। सिर्फ बाप को जो आसमान पर है उसको ये पता हो कि आपने रोजा रखा है, तब खुदा आपको उसका अजर देगा। कोई भी नेकी कीजिए, मत किसी को बताइए, आपका अजर खत्म हो जाता है। और अब में ये आदत बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोगों में बहुत सारी आदत है। कोई भी नेकी बहुत से लोगों को बताना जरूरी समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह आप अपनी नेकी खत्म कर रहे हैं, आप अपना अजर खत्म कर रहे हैं। जो कुछ कीजिए मत किसी को पता लगने दीजिए, बल्कि खुदा से कहिए कि खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करे। आए अपने सरों को झुकाएं और मिलकर दुआ करते हैं। जो मुझे देखकर सुन रहे हैं, आए मिलकर दुआ करते हैं। जिंदा खुदा बाप, जिंदा खुदा बेटे और जिंदा खुदा विदस के नाम से दुआ करता हूँ। मेरे मालिक, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करते हैं, आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और आपकी मदद सराई करते हैं। खुदा अपना पाक दाना हाथ बुलंद कीजिए, अपनी बरकतों को जारी कर दीजिए, अपना जलाल जाहिर कीजिए। मेरे खुदावंद, जितने लोग आज ये तहिया करें, ये इरादा कर लें क्या खुदा मैं जाहिरी नहीं बल्कि बातनी रोजा रखूंगा, रूह का रोजा रखूंगा, खुदा उनको इस बात में कायम रहने की तौफीक अता फरमा। इनको कलाम मुकद्दस और यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करने के लिए इस लायक बना खुदा, ताकि मेरे कुदूस खुदावंद कफारा के दिन में अपने आप को पेश करें, अपनी जानों को पेश करें जैसा खुदा चाहता है। मेरे कुदूस खुदावंद, हर एक को छूकर पाक कीजिए, क्योंकि लिखा है कि जब कलाम नाजिल होता है तो इंसान शिफा पाता है। कुदूस खुदावंद, आज का जो कलाम नाजिल हुआ, इब्लीस इनके दिल से चुरा ना सके, और ये आपके कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले बने, आपके हुक्मों के मुताबिक चले, ताकि इनके अंदर से सारी बीमारियां जाती रहे। खुदावंद, आपने अपने खादमीन से कहा कि तुम हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करोगे। रसूलों को यह इख्तियार मिला, आज भी आप ये अपने इख्तियार अपने लोगों से बांटते हैं खुदावंद। इसलिए मैं हुक्म देता हूं इस जमात के देखने और सुनने वालों से, ताकि इन किस्म की हर एक बीमारी, चाहे वो स्टमक की प्रॉब्लम मैदे की, चाहे वो गुर्दों की बीमारी है, चाहे हड्डियों की, चाहे खून की बीमारी है, चाहे वो माइग्रेन की बीमारी है, वो यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो, ताकि खुदा की कुदरत जारी हो, खुदा का नूर उनके ऊपर चमके, हर एक बीमारी कमजोरी तंदुरुस्ती में बदल जाए, हर एक बीमारी तंदुरुस्ती में तब्दील होकर खुदावंद आपके नाम को जलाल देने के लिए हो। इनके जिस्म पाक और मुकद्दस हो जाए खुदावंद। हर तरह की तरक्की यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद, आपका नाम इन सब में जलाल पाता चला जाए, आपकी कुदरत इनके ऊपर साया करे, आपका रूह इनके अंदर जुम्बश करे। खुदावंद, ये भी सोख्तनी कुर्बानी अपने आप को खुदावंद आपके लिए पेश कर सकें, इनको इस लायक बना, और पूरे दिल, पूरे जान, पूरी अकल से आपसे मोहब्बत कर सकें खुदा, और अपना पूरा दिल, पूरे जान, पूरी अकल, यानी अपना सब कुछ आपको दे दे, ताकि बरकत पा सके। खुदा इन सबको बरकत दे और जलाल से भर दीजिए यीशु मसीह